Hello everyone, so welcome to your own channel. In today's video, we will talk about types of web. Web, or you can say World Wide Web or WWW. As we all are aware that WWW is a collection of billions of web pages, or you can say it is the ocean of information. And that ocean of information can be easily accessed through any search engine like Google, Bing, Yahoo. Fine. But if you think that the information which we can access, which we can easily see is the only web, then you will be wrong. And you will be surprised to know that that part is only just 4% of the total web. Then what about the rest 96%? So today we will discuss that also. So let's see one by one. So there are three types of web, and that is, the first one is surface web. What is the surface web? It is the portion of WWW that is readily available to the general public and searchable with search engine. So what is surface web? That is available for the general public like we all, and searchable with search engine, which can be searched through search engine. So whatever information, whatever content you see through Google or through any other search engine like Yahoo or Bing or through Wikipedia, that all is surface web, right? If we imagine web as an ocean, the surface web is the top of the ocean which can be easily seen and accessible. So if you imagine that this is the ocean, web is the ocean, then surface web, this is the surface web. What is the surface web? Is the top of the ocean. Yeah, this is the top part of the ocean, and this part can be accessed through search engine like Bing, Google, Wikipedia or Yahoo, right? And that is the only 4% of the total web. तो जो ऊपर surface पे दिख रहा है, जो हमें टॉप में सब दिखता है, which we can access, which we can see, that is called surface web, जो हम सब access करते हैं through search engine, right? Now what about rest 96%? This rest is 96% below the surface. नीचे कितना गहरा है? 96% है, और वो क्या है आपका? deep web plus dark web. तो भी one by one we will see what is deep web and what is dark web. So now we will see the second part of the web, and that is the deep web. So what is deep web? It is the deeper part of the web that is hidden from the public or not indexed in search engine, which is not available for general public and not indexed in search engine. What do you mean by indexed in search engine? Means these links will not be visible in the search engine, right? So see, search engine will show you the links only those which are indexed in that. जिसका indexing किया होता है, सिर्फ वही links आपको visible होते हैं search engine में. और जो ये deep web है, उसको indexing नहीं किया जाता, which are not available for general public, right? Which are meant for some specific group of people, specific people. Second, it can be accessed by knowing the URL and ID password. तो आपको कैसे एक्सेस करना है डीप वेब? उसका URL पता होना चाहिए वेबसाइट का. यू नीड टू राइट द URL इन द एड्रेस बार, राइट? उसका पूरा वेबसाइट का एड्रेस लिखना होगा एड्रेस बार में, और आपको ID पासवर्ड होना चाहिए. तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हिडन रखी जाती है जनरल पब्लिक से, विच इज़ नॉट फॉर एवरीवन. तो जिसके लिए है उसको ID पासवर्ड दिया जाएगा, एंड ID पासवर्ड यूज़ करके ही और URL टाइप करके ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट? नॉट मेंट फॉर मैलिशियस एक्टिविटी. It is hidden. It doesn't mean that it is for some bad work or some malicious activity. It is not meant for malicious activity. It is legal and good work only. For example, what type of work or what type of information is written under deep web? नेट बैंकिंग, जो भी नेट बैंकिंग है वो इजीली आपका अवेलेबल नहीं है, उसके लिए ID पासवर्ड चाहिए सबके लिए. मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, या गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पब्लिकली नहीं दिखाई जाती, उसके लिए ID पासवर्ड दिए जाते हैं. जो ऑथेंटिक है यूजर्स, दोज यूजर्स ओनली कैन एक्सेस दैट. सो दिस इज द डीप वेब.
अब बात करेंगे हम डार्क वेब की। डार्क वेब क्या है? डीप वेब से भी एक्चुअली डार्क वेब डीप वेब का ही पार्ट बोला जाता है, ठीक है, पर डीप वेब के ज़्यादा अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपका डार्क वेब है। So let's talk about dark web now. Now we will see the third type of web, and that is the dark web. So what is dark web? It is the deepest part. Okay, it is the sub part of deep web only, right? You can say the dark web is the part of deep web only, but it is the deepest part and the area where anonymity is critical. Anonymity किस लिए यूज होता है? Anonymity के लिए, मतलब नहीं पता लगना चाहिए कौन रन कर रहा है वेबसाइट, क्या देख रहा है, कौन उसे होस्ट कर रहा है, कुछ नहीं पता लगता। तो एरिया वेयर एनोनिमिटी इज क्रिटिकल, दैट इज द डार्क वेब। और जहाँ इतना प्राइवेसी, इतना एनोनिमिटी हो, कुछ नहीं पता लगे, किसी का आईपी एड्रेस नहीं पता लग सकता, आप ट्रैक ही नहीं कर सकते कौन क्या देख रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इट मीन्स वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी होंगी ही होंगी। सो सेकेंड पार्ट इज क्रिटिकल एक्टिविटी इज मोर प्रिविलेंट। तो क्रिटिकल एक्टिविटी ही आपकी मोस्टली डार्क वेब में होती है। बाकी दूसरे काम भी हैं, जैसे सपोज किसी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता और हर सिटीजन को मॉनिटर किया जाता है, उनके कम्युनिकेशन को मॉनिटर किया जाता है, तो वो कहाँ जाएंगे अपना एक्सप्रेस करने या कुछ भी प्रोटेस्ट करना है तो दे एक्सेस द डार्क वेब। सो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है इन अदर कंट्रीज, नॉट इन इंडिया। फाइन, सो इंडिया में कोई इसका यूज़ नहीं है लीगली, बट क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं लोग। क्या क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं? ब्रीच्ड डेटा, जितने भी आपके कई बार सुना होगा डेटा लीक हो जाते हैं, आधार कार्ड के इंफॉर्मेशन आ जाते हैं सबके, ठीक है, और ऑडियो लीक हो जाते हैं, वीडियो लीक हो जाते हैं, वो सब कहाँ काम होता है? सब आपका डार्क वेब में है। इवन आपके एमपीज के, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ऑडियो जो लीक हुआ था तो वो डार्क वेब में, इमरान खान का भी बाद में हुआ था, राइट। सो ये सब काम कहाँ होते हैं? डार्क वेब में। ब्रीच डेटा, जहाँ पे डेटा आपका खरीदा जाता है, बेचा जाता है। इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटी लाइक ड्रग डीलिंग, सेल एंड परचेस ऑफ वेपन्स, टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव होते हैं वहाँ पे, और भी जितना आप खराब काम सोच सकते हो सब क्रिमिनल एक्टिविटी आपके डार्क वेब में होती है, राइट। बिकॉज वहाँ पे कुछ है ही नहीं, आपका कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता, तो सारे क्रिमिनल्स गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द डार्क वेब। नाउ बट it needs special software to access the dark web because a lot of it is encrypted. इसको रन करने के लिए डार्क वेब कैन नॉट बी accessed through the web browser like your Google Chrome or Safari. In web browser से you cannot access the dark web. Dark web needs a special software, special browser. Fine. क्यों? Because everything is encrypted. सब एकदम जो मैसेज आप डेटा देंगे 3 layers एनक्रिप्शन में पास होता है वो। आई विल टेल यू दैट। सो दैट्स वाई इट नीड्स अ स्पेशल सॉफ्टवेयर। एंड विच सॉफ्टवेयर? Tor browser, TOR. Tor browser is needed to access this dark web. And the full form of Tor is the onion router. T stands for the, O stands for onion, and R stands for router. So this is the full form of browser. And if you ask me that whether this Tor browser is legal or not, yes, this is legal, and it is available on the Google Play Store, and you can download from there. Okay, so now we will see how the data remains anonymous. Anonymous क्यों रहता है, क्यों हम ट्रेस नहीं कर सकते, क्यों हमें IP एड्रेस नहीं पता चलता? Let's see how does it work. सी फर्स्ट जो Tor ब्राउज़र है, Tor ब्राउज़र इजीली अवेलेबल है, और ये किसने डेवलप किया था? दिस वाज डेवलप्ड फॉर सम गुड पर्पस ओनली, एंड दैट वाज डेवलप्ड बाय US नेवी फॉर एनोनिमस ऑनलाइन कम्युनिकेशन, बट लेटर दे ड्रॉप दिस प्रोजेक्ट। तो उसके बाद से इसका मिसयूज भी स्टार्ट होने लगा है, राइट। नाउ व्हेन यूजिंग द Tor ब्राउज़र योर डेटा गोज थ्रू डिफरेंट Tor सर्वर्स। जो आप Tor ब्राउज़र आपने, सपोज दिस इज द यूज़र, और सिस्टम पे हमने Tor ब्राउज़र इंस्टॉल किया फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, तो ये यूज़र हुआ। तो ये जो डेटा सेंड कर रहा है कितने नोड से जाएगा? 1 2 3 नोड से क्रॉस होके जाएगा। कहाँ तक? ये डेस्टिनेशन तक, ठीक है। तो इट गोज थ्रू द डिफरेंट नोड्स।
Data is heavily encrypted at the first node and then slowly decoded one layer at a time at the different nodes. क्या होता है, जब यूज़र कोई डेटा सेंड करता है वो 3 लेयर एनक्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 3 लेयर्स उस पर चढ़ जाता है. जैसे सपोज आपका एक मैसेज है, ये मैसेज है, उसमें 3 लेयर ऊपर कवर हो जाएंगी उसको सेफ्टी सिक्योरिटी देने के लिए, सो दैट नो बडी कैन रीड दैट मैसेज. अब ये मैसेज के ऊपर 3 लेयर उसकी एनक्रिप्शन की है, तो हाउ विल यू रीड दैट, हाउ विल यू डिकोड दैट, राइट. सो फर्स्ट नोड पे 3 लेयर एनक्रिप्शन है. तो डेटा जैसे सेंड हुआ, इसने उसको एक्सेस किया, तो ये क्या करेगा, उसका एक लेयर रिमूव कर देगा, ठीक है, एंट्री नोड. फिर आगे रिले नोड को पास किया, रिले नोड ने सेकेंड लेयर आपका एक लेयर और एनक्रिप्शन का डिकोड किया. देन एक्सिक नोड पे गया, एक्सिक नोड ने एक लेयर और किया, ठीक है, तो 1 लेयर एनक्रिप्शन रह गया. फर्स्ट नोड पे 3 लेयर एनक्रिप्शन था, देन 2 लेयर एनक्रिप्शन रह गया, देन 1 लेयर एनक्रिप्शन. तो ये क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, डिकोडेड 1 लेयर एट अ टाइम एट द डिफरेंट नोड. हर एक नोड एक एक लेयर को हटाता जाएगा, ठीक है, और डेस्टिनेशन तक भेज देगा. ठीक, अब इतना एनक्रिप्शन है इसमें, दैट्स वाई दिस इज द रीजन ओनली ये एनोनिमस रहता है. और आईपी एड्रेस भी चेंज होता रहता है, पहले इस नोड पे जाएगा, फिर इस नोड पे जाएगा, इस नोड पे. तो आईपी एड्रेस यू कैन नॉट ट्रेस दैट, यू कैन नॉट डिटेक्ट दैट. और इसे बोलते हैं हम अनियन राउटिंग. लेयर बाय लेयर उसका पहले एनक्रिप्शन होता है, फिर डिकोडिंग होती है. तो लेयर्स हैं, जैसे अनियन में लेयर से एक एक हटती जाएंगी, इसीलिए इसको अनियन राउटिंग बोलते हैं. और टोर द अनियन राउटर है, ठीक है, समझ आया. अब इसको टोर ब्राउजर को रन करने के लिए इफ़ यू हैव समवेयर इन माइंड दैट कनेक्शन आईएसपी ही चाहिए या नहीं, आईएसपी पे भी चल जाता है. आईएसपी जो भी आपके हैं, एयरटेल है, जियो का है, ठीक है, सब पे चल जाएगा. बट क्योंकि ये तो आगे जैसे ही कनेक्ट हुआ तो वो एनोनिमस हो गया. बट आईएसपी से क्या होगा, आईएसपी से आपका यूज़र का पता चल जाएगा कि ये टोर ब्राउज़र यूज़ कर रहा है. दैट कुड बी लिटिल बिट सस्पिशियस, राइट. तो इफ़ वी आर यूजिंग आईएसपी को पता चल गया कि यूज़र टोर ब्राउज़र कर रहा है, तो उस पर कोई लीगल है तो इलीगल का कुछ मतलब वो नहीं आएगा ब्लेम. तो ठीक है, कर रहा है तो कर रहा है, बट सस्पिशियस हो जाता है थोड़ा कि टोर ब्राउज़र जनरली क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, हमेशा नहीं होता, जनरली होता है. ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, वीपीएन यूज़ करते हैं ओवर द आईएसपी नहीं करते हैं. इफ़ दे आर परफॉर्मिंग सम क्रिमिनल एक्टिविटी और प्राइवेसी चाहिए तो उसके लिए वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो उस हाइड करता है ऑनलाइन आइडेंटिटी को, आईपी एड्रेस चेंज करेगा. इसके वीपीएन से आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि वेदर वी आर यूजिंग द टोर ब्राउज़र और नॉट. That's why people prefer VPN over ISP, right? And the third is this network hides your IP address and not possible to trace you. This we have already discussed. I hope you have understood how this data remains anonymous, right? Now we will see why should we not use dark web. So I always recommend you not to use the dark web. Why I am saying? Because it consists mostly of illegal content which can hurt and disturb. So many content is there which can hurt and disturb. See, many people have shared their experiences in YouTube of dark web, and I have just seen their thumbnail which was really too scary, and I couldn't dare to open that link. So why to invite unnecessary trouble in our happy and peaceful life? So if you have curiosity, stop your curiosity. No need to go for dark web. Many terrorist group uses the dark web to coordinate their actions. So terrorist group already active there. Next is phishing scam. See, on the dark web जो आपका URL यूज़ होता है वो ऐसा नहीं होता जो हम यूज़ करते हैं, लाइक anywebsite.com नहीं चलता वहाँ, .net .in भी नहीं चलता, .onion का वेबसाइट चलता है, ठीक है. और नाम के बजाय कुछ अजीब सा कोड आता है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका ओरिजिनल साइट है या फेक साइट है, ठीक है. .onion होता है उसका एक्सटेंशन. So on the dark web, it is much easier to fall victim due to the web addresses they present. तो जो वेब एड्रेसेस होते हैं वो पता ही नहीं चलेगा उसका फेक है ओरिजिनल है, एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द फेक वेबसाइट. तो आपका फिशिंग स्कैम मोस्टली होते हैं वहाँ पे.
malware can be installed in your system and the access of your computer can easily be gone to some other hands. तो in your system malware can be installed and आपके सिस्टम का एक्सेस किसी और के पास जाएगा. कब आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, कब आपके प्राइवेट फ़ोटोज़ या कंटेंट या कोई डेटा सब का सब किसी और के सिस्टम पे चला जाएगा. तो नेवर एवर ट्राई टू open this dark web, and we should always avoid this. So I hope you have understood the concept of surface web, deep web and dark web. So that's it in this video. Thanks for watching.